हेलो, हेलो। हेलो। क्यों? ओह! अच्छा, ओके, ओके। We are starting with Saraswati Vandana. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट पारस कोचर साहब, एडवोकेट पारस कोचर जी से राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र। मित्रों, इस साल मैंने इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का पद ग्रहण किया है और आज ये पहला सेमिनार है, पहली स्टडी सर्किल है। और इस स्टडी सर्किल में मैंने एक ऐसे लर्नर लेक्चरर को बुलाया है जिसके पास अभी तक 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पास किए, 1 लाख स्टूडेंट। और पब्लिक फोरम में बहुत रेयर ही ये आते हैं कि उतना समय नहीं है। आगे भी 2-3 सिर्फ लेक्चर इनके पब्लिक फॉर्म में हुए होंगे मेरे ख्याल से, और वो भी सब मेरी वजह से ही हुए। मैंने नॉट वजह से है, बल्कि मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। इस सब्जेक्ट में इनका बहुत बड़ा कमांड है। और आप सोचिए, जो आदमी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, मैंने स्टूडेंट तो अनएडुकेटेड है, उसके लिए तो सब्जेक्ट नहीं है, वो जानता ही नहीं है, उसको पढ़ा के अगर कोई चीज डाल सकता है तो हम लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, तो हम तो चीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये मौका बहुत नहीं आता है। और जब भी इनका सेमिनार हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया और यही कहा कि रिपीट होना चाहिए। और आशा है कि आज भी ये प्रोग्राम जो है, ये सेमिनार सबको अच्छा लगेगा। और आप लोग जब भी पढ़े हैं स्कूल में, क्लास में 30-40 स्टूडेंट रहते होंगे, वही क्लास सबने देखी होगी। मैंने भी वही क्लास देखी थी। आज से कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। महाजाति सदन में इन्होंने मुझे बुलाया। मैं सोचा कोई सेमिनार होगा, उसमें इनका लेक्चर होगा, तो मैं गया। याद है ना मित्र? मैं आश्चर्यचकित रह गया
महासाधु सदन पूरा भरा हुआ था इसके स्टूडेंट से, और ये क्लास ले रहा था। एक साथ 1000-1200 स्टूडेंट को पढ़ाना, 40 स्टूडेंट में तो टीचर की धोती खुल जाती है। तो 1200 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। पिन ड्रॉप साइलेंस से लोग पढ़ रहे थे, वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। वैसे अमित मेरे ओन मौसी का ग्रैंडसन है, और इसके जो फादर है, हम लोग एक उम्र होने की जगह कारण कजिन नहीं बल्कि बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो इसलिए जब भी मैंने इसको कहा है, इसने कभी भी ना नहीं किया। इस बार भी 1 मिनट में कह दिया कि जब अंकल आप बोल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि शायद ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आएगा। मैं दाढ़ी वालू जी को With these words, I request our chairman to start the session and set the ball rolling. And oh, sorry, I request C.S. Ravi Verma to please introduce our speaker. So, well, good afternoon, everyone. I'll not say good evening because, yes, obviously, we all are energetic and we'll make the second session very energetic. So, we welcome Amit Bachawat, sir, to this BBD Bagh CPE Study Circle, this first meeting that we are doing today in the edges of BBD Bagh Professional Club. And it's our privilege to have you with us, sir. Well, I don't think that he needs any introduction, but as a formality, I would like to introduce. And today I will say I'm privileged to introduce him because the reason being I would like to share something that today people recognize me from being on the forum for corporate law and what achievements I have achieved personally with the All India second rank. So I always say that my all credit goes to his because his excellence, dynamic, and guidance has changed everything. So with I am sure that my words will be falling short when I'll explain about Amit Bachau sir. We all know that he is a commerce graduate from St. Xavier's, and thereafter he has qualified in both CA, CS. And since 2001, he is teaching students, and his simplified approach with the charming personality has made the law subject very interesting. If you ask any people, the audit and law, if they are saying that they have got the practical idea about the law, then the only answer is that Amit Bachawat sir. And over a period of 11 years, as Paras sir was saying, that with more than 1 lakh students, and in a period of 24 years, there are 11 times when his student got all India first rank. It is 11 times itself is a record. And with the time evolution, he has also mentored many students across the, like you can say, different cities, including Bangalore and Guwahati in particular. And today, like in the present age, when we are talking about the e-learning classes, he is delivering his classes through Google Drive and the e-wave mods, etc. And about his family background, we all know that he hails from a very well reputed Jain family. And his great grandfather, Pushraj Bachavaji, we all know that when we go to the Jain Vidyalaya, we say Sukya's Lane is actually Pushraj Bachava, the great grandfather of Amit Bachava sir. And his grandfather also, Hiralalji Jain, there is a road, there is a mark named after him in Agartala. And this Jain school, when we are talking about the Sugya's Lane, this Jain school also is promoted and built up by his great grandfather only. So, with a great round of applause, let's welcome Amit sir to this session. And we all know that when we are talking about this session is all about the intercorporate deposits and loan. We have also got the another charming personality, you can say, to chair the session, and the lady who doesn't need again an introduction. But again, for formality, I will like to introduce you, madam. It's a privilege of mine also to introduce C.A. Nilimaji, madam, a partner of Chaturvedi and Company. And we all know that a member of DTPA, past president, and ACAE, Bharat Chamber of Commerce. She was also a chairperson of Ladies Wing of the Bharat Chamber of Commerce and was president of Rotary Club, which we all know that the oldest Rotary itself. So we are going to, for sure, we are going to have this wonderful session because we, on the both side, chairperson as well as the speaker, both are dynamic at both the end. Thank you. So now I hand it over to the speaker, to the chairperson to take it forward. Good afternoon, everybody. I must tell you here the chairperson has a very minimal role just to ensure what the topic is, because everything else Mr. Bachawat will be able to take care of.
Since he's teaching so many, even I've come here to learn. So, as we know today, we have C. Amit Bachawat, who would be speaking on the topic intercorporate loans and deposits for private companies. And he would also be having an interactive session with all of us. So please feel free to come up with your questions, and I'm sure he'll provide the right answers for that. As a chairperson, I don't think I have much to say, which I said much when we have such a wonderful speaker with us. So coming to the topic, today's topic for discussion, it is something very brief. It is needless to say that every company needs capital for this business from time to time, and the company can get this capital to the extent by issue of its shares, or at times it needs to raise loans, and the option of borrowing depends on the need of the company and the nature of the borrowing. So the company can arrange these loans from external sources like banks, from its shareholders, from different public amount also. And the manner in which this can be borrowed and from whom it, and to the extent it can be borrowed, the compliances needs to be done by a company, which is regulated by the various acts and mostly by the Companies Act. So without much ado, I think I'll just tell Amit, because whatever I've written is not worth saying anything, because all of us would be very happy to hear him. Thank you. All yours. Thank you so much. Good evening, everyone. It feels incredible to be invited at BBD Bagh Study Circle in midst of such a warm and intellectual audience. My friends, my ex-students, and colleagues of my fraternity. I extend my heartfelt gratitude towards the current president of BBD Bagh Study Circle, Advocate Shri Parasji Kochar, to whom I call as Uncle Paras Uncle, Secretary Mr. Rakesh Dhaniwal, Chairperson of the session Mrs. Nilima Joshi, Convener Mr. Pankaj Verma, and other esteemed dignitaries present here today, Mr. Ashok Maheshwari ji, R.K. Vyas ji, Sanjeev Sanghi, Chairman of EIRC, and all others who are present here. I'm really thankful for giving me this opportunity. So, please allow me to be your captain for next 1 hour 20 minutes. The flight is ready for departure, and it's a very short trip of 1 hour 20 minutes. And after that, there might be some turbulences, some brainstorming questions. So I have basically divided my discussion into 3 parts. First of all, deposits, that is section 73 and 76A only I'll be talking about, as the topic allocated is only for private companies. After that, we will move on to intercorporate loans, which covers loans, investments, guarantee security in connection with loan, and some aspects of section 185, because private company code, this section applies only to limited extent. Some aspects. There are exemptions, but every private company cannot avail the exemption of section 185, as there is a myth, private company ko ye apply nahi karega, but sometime even private companies might be covered by section 185. So the entire discussion is split into 3 parts. Now we need to understand, I'll be using a blend of both Hindi and English. I hope so there we need to understand that when I talk about deposits, it is from the receiving angle, that when a company receives deposits. When I talk about 186, it is the company which is giving loans, giving guarantee or security in connection with loan. गिविंग कंपनी के एंगल से मुझे 186 का कंप्लायंस देखना है, अगर मैं कोई क्लाइंट के बिहाफ में उसे एडवाइस करना चाहूंगा, या अगर कोई बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रीस्ट्रक्चर करना चाहता है, तो जो कंपनी लोन दे रहा है वो 186 देखेगा, जो रिसीव कर रहा है, आज क्योंकि डिस्कशन प्राइवेट कंपनी का एंगल है, रिसीविंग कंपनी विल टेक इट्स ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द व्यू ऑफ सेक्शन 73 डिपॉजिट्स. So deposits is a very broad area, because agar public deposits discussion mein hota, then the session would have continued for 3 hours. But since it's only private companies, so first we need to understand that what is the meaning of deposit. Because deposit शब्द के अंदर एक word flash कर रहा है loan.
So there is a very thin line of difference. There is a very thin line of difference between deposit and loan, जो पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और जजमेंट्स में दिया हुआ है. So of course we are not going to talk about the difference right now, but deposit शब्द का मतलब क्या होता है? तो अभी हम कंपनी लॉ के एंगल से सब कुछ देखेंगे. टैक्सेशन एस्पेक्ट्स की बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाता है कई बार क्लाइंट के बुक्स में, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, इट्स नॉट माय सब्जेक्ट आल्सो. सो डिपॉजिट में आप देखो यहां लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट. डेफिनेशन लग रहा है कि बहुत वास्ट है. और लोन इन एनी अदर फॉर्म, इन एनी अदर फॉर्म इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. But ये जो definition है, this definition is basically in the negative sense. The definition is that definition which gives a long list of exempted deposits, because this definition is giving a big relaxation. Lot of amount which we receive will not be attracted by the term deposits. हमारे घर में फैमिली बिजनेस भी है और कई बार चाचा जी और पूछते हैं कि, एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज दे आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो कई बार पूछते हैं कि अरे हर चीज में आजकल डिपॉजिट सेक्शन लग जाता है. बिकॉज ऑफ कोर्स वन हु इज टोटली इन्वॉल्व इन बिजनेस, दे मे नॉट बी नोइंग सो मच ऑफ लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज कि सब हर चीज में डिपॉजिट्स का कंप्लायंस है, ये है. तो फिर हम एडवाइस करते हैं इनफॉर्मली कि ऐसा नहीं है, आप अपना ट्रांजैक्शन ऐसा स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आपके ऊपर मिनिमम कंप्लायंसेज हो या nil compliances हो. So my area of discussion would be basically on those areas where you can take deposits but without getting triggered by these procedural norms. So first of all, एक छोटा सा relaxation जैसा आप साइड पर देख रहे होंगे, which all of us know, private company अपने शेयर होल्डर्स से डिपॉजिट्स ले सकता है अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कि प्राइवेट कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा छूट है, दैट दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विदाउट कंप्लाइंग विद all these procedural formalities. I'll go through that later on. Without that, private company इतना उठा सकता है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं कर सकता. पब्लिक कंपनी मेंबर्स से कुछ परसेंटेज है, पब्लिक से अलग परसेंटेज है, बट इट इज नॉट 100%. But there are two private companies, there are two types of private companies which can even borrow more than 100% of the paid up capital, free reserves and securities premium. Private company which is a startup, उनके लिए एक big relaxation है for 10 years from incorporation. So if you have a startup client, you can advise accordingly कि private company जो startup है, startup doesn't mean any startup. आज business शुरू हुआ startup नहीं, of course वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के जो स्टार्टअप के डेफिनेशन के अंदर क्वालिफाई करें. And second point is a big catch. Kuch private companies can borrow even more than 100% of paid up capital, free reserves and securities premium. Which are those private companies? Private company which satisfy all these conditions, all. It's not any of these. A private company which satisfies all the three conditions which I'm going to reiterate again. If your private company is not an associate or subsidiary company of any other company, तो आप जब अपने ट्रांजैक्शंस किसी क्लाइंट का देख रहे हो, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर करे, डिटेल्स शेयर करे, तो यू हैव टू फर्स्ट सी इट शुड नॉट बी एन एसोसिएट और अ सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी. Then you can get this relaxation provided other two conditions are satisfied. Second point, the borrowings of such a private company, किस किस से borrowings रैंडमली अपने बोल देते हैं, बैंकों का बोरोइंग, बैंक के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है. और थर्ड आइटम, बॉडी कॉर्पोरेट की बोरोइंग्स को भी एग्रीगेट करके आपको चेक करना पड़ेगा. इट इज लेस देन लोअर ऑफ द टू, ट्वाइस द पेड अप कैपिटल और 50 करोड़. सो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड बहुत बार लोग इंटरप्रेट करने में भूल जाते हैं, बिकॉज कोलेक्चुअली स्पीकिंग, कैजुअली स्पीकिंग यही बोलते हैं बैंकों का बोरोइंग चेक कर लो. इवन लोन फ्रॉम एलएलपी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज टू बी एग्रीगेटेड एंड देन चेक्ड that this is lower than these two. And third case, वो प्राइवेट कंपनी ऐसे बोरोइंग्स का कोई डिफॉल्ट ना कर रही हो आज के दिन, as on date no default should be going on. So if the client company is a private company which satisfies all these conditions, not an associate, borrowings within the limit as said, and no default going on, ऐसी प्राइवेट कंपनी more than 100% भी बोरो कर सकती है paid up capital, free reserves and securities premium से. सो प्राइवेट कंपनी में ये रास्ता अपने लोग को हमेशा खुला नजर आता है. बट प्राइवेट कंपनी को भी कुछ कुछ चीजें और गुड न्यूज है कि ये जो 100% का लिमिट्स हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें कुछ कुछ चीजें उसके बियॉन्ड भी हो सकता है, बिकॉज वो लिमिट में काउंट ही नहीं होगा. देर आर सम डिपॉजिट, नाउ द मेन गेम प्लान स्टार्ट्स. देर आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिट्स विच अ प्राइवेट कंपनी गेट्स, सर्टन अमाउंट, सर्टन लोन्स, वो इस लिमिट के अंदर नहीं आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल
if you get a bank loan, if you get subsidy from government or from a foreign company, commercial paper issue करके, तो ये आपके डिपॉजिट्स में नहीं आते हैं. नाउ दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. अ प्राइवेट कंपनी को जब कोई दूसरे कंपनी से डिपॉजिट्स मिलता है, इंटर जो पॉपुलरली कॉल्ड एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, प्राइवेट कंपनी को जब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स मिलता है दूसरे कंपनी से, इट इज एन एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट एज पर डिपॉजिट रूल्स. तब आपको ये कंप्लायंसेस, मतलब वो लिमिट के अंदर भी नहीं आएगा जो अपने 100% का एक लक्ष्मण रेखा लगा रखे, इवन दैट कैन बी क्रॉस्ड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, can a private company accept deposit from LLP? Because sound effect आ रहा था, inter corporate deposits. LLP से private company अगर deposits लेगा, will it be exempted? So to my mind, LLP is a body corporate. और यहाँ पे language जो rules में use हुआ है, any amount which a private company receive from any other company. So आप LLP से भी अगर deposits लेते हो, तो इस clause के अंदर, the clause which is reflected on the screen, इस clause के अंदर it is not considered as exempted deposit, but there are clauses जहां पर आप उसका शेल्टर उठा सकते हैं. हम लोग देखेंगे कि LLP से भी अगर प्राइवेट कंपनी पैसा उठाती है, how it can still try to avoid the section without violating anything. Similarly, HUF firm इस क्लॉज के अंदर कवर नहीं होगा. आई एम नॉट सेइंग कि HUF देखते ही आप रिजेक्ट कर दो, क्लाइंट को HUF से नहीं ले सकते. आप ट्रांजैक्शंस ऐसा स्ट्रक्चर करवा सकते हो कि आप कुछ दूसरा एग्जेम्पशन के अंदर आ जाओ. बट फॉर दिस क्लॉज, सो पॉपुलरली कॉल्ड एज inter-corporate deposits, if a private company is accepting deposits from HUF, if a private company is accepting deposits from firm, I don't feel that it would come under the clause number so and so reflected. So this inter-corporate deposits is an area where a lot of people want to play, that how to escape, whether we'll be trapped if we are getting deposits from another company. So the answer remains clear. If it's from another company, if you're a receiving company, आपके ऊपर ये नहीं लगेगा. But again, after 35 minutes, I'll be starting with intercorporate loan. The loan giving company को 186 नाम का सेक्शन कंप्लाई करना पड़ेगा. अभी इंटायर डिस्कशन इज गोइंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ रिसीविंग कंपनी. रिसीविंग कंपनी को इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का कंप्लायंस दरकार नहीं पड़ेगा. सिमिलरली आप ये देखिए, दिस इज नाउ अ बिग थिंग कि एडवांसेस, प्राइवेट कंपनी बहुत सारे एडवांसेस अगर रिसीव करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अब ये जो वर्ड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, this has not been defined what is ordinary course, but of course all of us understand that ordinary course of business का मतलब है the usual business में जो हमारा regular business activity है. तो private company अगर advances receive कर रहा है in the ordinary course of business, then it may be considered as exempted deposit. But all that glitters is not gold, because ये सारे points जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन गेट द एडवांटेज ऑफ दैट एग्जेम्पशन. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इन डिटेल, ये जो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी. नाउ amount is received by private companies pursuant to share application. So there is a norm that it must be allotted within 60 days from the date of receiving the application money. If it is not refunded, if it is not allotted, if the shares are not allotted within 60 days, then as soon as 60 days are over, within 15 days from the completion of 60 days, within 15 days from the completion of 60 days, it must be refunded. I use the word refunded. Number of times what happens, it is seen that a private company has done some book adjustment. कि सपोज आप जिससे शेयर एप्लीकेशन मनी पाए थे, कोई आपका कस्टमर था, एंड वो कस्टमर के साथ आपका कुछ सेट ऑफ हो गया और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ हमने तो 60 दिन के बाद सेट ऑफ कर ही लिया था, उससे पाना था, उससे लेना था. दैट इज नॉट अलाउड. एनी एडजस्टमेंट फॉर एनी अदर पर्पस will not be treated as refund. You have to refund within 15 days from the expiry of 60 days. यानी indirectly आपको 75 days का relaxation मिल गया है. यानी suppose you are on the 64th day, तो 64th day में you are, that amount is not considered as deposit. 15 दिन का time है, within 15 days if it is refunded, it's okay. And आप अगर ये सोचेंगे adjust कर देंगे 15 दिन के अंदर, adjustment will not suffice. It has to be refunded within 15 days from the expiry of 60 days. So share application money is a big area जहां पर after the new companies act regime, everyone is very much aware about. पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सालों तक share application money की continue रहता था, but after that things have changed. Now
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी पॉपुलर थिंग जो शायद फैमिली बिजनेस में बहुत लोग अपने लोग करते होंगे. प्राइवेट कंपनी यूजुअली अपनी डेफिनेशन में देखे थे एनी अमाउंट रिसीव्ड, बट अगेन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जेम्पशन. अगर प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से रिसीव करता है और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से रिसीव करता है, इट इज एग्जेम्प्टेड. जब पब्लिक कंपनी का एंगल हम डिस्कस करते जो आज नहीं हो रहा आज की शाम, तो सिर्फ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी से रिसीव करने से एग्जेम्पशन होता है. बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इफ यू आर रिसीविंग फ्रॉम डायरेक्टर और इफ यू आर रिसीविंग फ्रॉम रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर. नाउ यहां पर एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, रिलेटिव को भी कैसे डिफाइन किया गया है कंपनी लॉ में, दैट एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड. बिकॉज कई बार आपको लगता है अरे मेरा भतीजा से मैंने रिसीव किया, डायरेक्टर के भतीजे से, तो डायरेक्टर का भतीजा इज नॉट अ रिलेटिव विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ. तो देर आर, बिकॉज इनकम टैक्स में रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत वास्ट है. पारस अंकल ऑफ कोर्स वो आपको बेटर बता पाएंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट आई हैव हर्ड इट्स वेरी वास्ट. बट यहां पर रिलेटिव को डिफाइन बहुत ही जिस तरीके से किया गया, इट शुड बी अ रिलेटिव विद इन द मीनिंग ऑफ दैट क्लॉज. अनदर एस्पेक्ट, तो कई प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही थी, कंपनी का सपोज रेपुटेशन खराब है, तो उनके डायरेक्टर की गुडविल है, तो डायरेक्टर लोन ले रहा था एंड डायरेक्टर फिर लोन यहां पास ऑन कर दे रहा था. तो दैट इज while framing this rules they came out with a clause कि जिन डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से लोन ले रहे हैं और एग्जेम्पशन की बात उठ रही है, दे हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन. कैसा डिक्लेरेशन राइटिंग में देना पड़ेगा कि वो लोग जो डायरेक्टर हैं और जो रिलेटिव हैं जो हमें लोन दे रहे हैं, they have not taken that amount as a borrowing from anyone else. यानी एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन उनसे लेना पड़ेगा कि ये जो बोरोइंग्स हैं, ये जो लोन दे रहे हैं उनके इंटरनल एक्रूअल से हैं, दे हैव नॉट बोरोड इट फ्रॉम एनी अदर पर्सन. एंड ये बोर्ड्स रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज होना चाहिए. एंड रूल्स में लिखा हुआ है डिपॉजिट में, डिस्क्लोज इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि जब किसी क्लाइंट का हम ये काम करवाएं तो उसमें ये चीज भी इंश्योर कर लें कि ताकि बाद में लिटिगेशन में ना आए. बस आप सोच रहे हैं डायरेक्टर से लेके करवा देंगे, डायरेक्टर कोई और से लेके आया है, बट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन भी यू हैव टू मेंटेन दैट डायरेक्टर has not given it out of someone else's funds which he has borrowed from someone else. And disclosure boards report में भी है and notes to financial statements में भी है. So this is a very important catch, a very important observation when you are taking ये point को discuss करते हैं director, relative of director of private company. Next, if we discuss the most important one, जो मैंने आपको बताया था कि ordinary course of business में जो advances receive किए जाते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में जो एडवांसेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए जाते हैं, इसके लिए सब पॉपुलरली जानते हैं कि अगर कोई एडवांस आ रहा है तो 365 डेज के अंदर आप उसको कर दीजिए, माल को सप्लाई कर दीजिए. दिस इज द कैजुअल टॉक विच वी डू. बट नाउ व्हाट आर दीज फ्रेजेस टॉकिंग अबाउट? लेट अस रीड बिटवीन द वर्ड्स. यहां पे लिखा है एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस इज अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द सप्लाई. Now, इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, बिकॉज कई बार क्या होता है एक ही चीज के दो इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं. व्हाट आई फील बाय रीडिंग लॉट ऑफ आर्टिकल्स दैट सपोज आई हैव टेकन ऑन 1st April 2026 एडवांस ऑफ 10 lakhs. ओके, आई एम ए प्राइवेट कंपनी. तो मेरा माइंड यही बोलेगा कि या तो मैं माल सप्लाई कर दूं, तो क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस को ऐसे स्ट्रक्चर करवाऊं, या मैं उनका रिफंड कर दूं 365 डेज के अंदर. ठीक है, अब 10 लाख मैंने लिया है उनको कुछ सप्लाई करने के लिए, पर अगर मेरा ये मानना है, जो कई मैंने राइटिंग्स और आर्टिकल्स पढ़े हैं, कि अगर एडवांस को आप यूज करना शुरू कर देते हो, जेन्युइन बिजनेस पर्पस दिखाते हैं, आई हैव नॉट सेड पूरा यूज हो, अप्रोप्रिएटेड एडवांस इज अप्रोप्रिएटेड. 10 लाख मैंने लिया है तो 10 लाख का 10 लाख रेडी होना, पूरा यूज होना जरूरी नहीं है. इवन इफ इन माई बुक्स आई शो कि 1.5 लाख 2 लाख, ऐसा कोई क्वांटिफिकेशन नहीं हुआ है. इफ द एडवांस हैज बीन स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग, वी हैव एडवांस का यूज होना अगर शुरू हो गया अगेंस्ट दैट सप्लाई within 365 days, even that is sufficient. ऐसा नहीं है कि 10 लाख अगर लिया है तो माल निकल ही जाना चाहिए आपका हाथों हाथ 365 डेज के अंदर. लिखा है एडवांस इज अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द सप्लाई, यू हैव स्टार्टेड यूजिंग द एडवांस अगेंस्ट द सप्लाई. ये इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है वुड बी बेटर. नाउ इसमें कई लोग पूछते हैं कि अगर पैसे की बहुत लिक्विडिटी क्राइसिस है, 365 डेज कि पहले अब पैसा रिफंड ही करना होगा, अभी हम यूज तो नहीं कर रहे, तो एक weird suggestion which comes to my mind, I don't know कितना ये legally आप लोग, because practice में है, हम लोग एक क्लासरूम में है, to what extent is true. 11 महीने की समाप्ति पे what one can do that you can give a check to that person जिससे आप एडवांस लिए, आप एक चेक, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है उस आदमी से, आप ही के साथ उठना बैठना है कि देख पैसे का दरकार है पर अब देना भी पड़ेगा मुझे वापस, क्योंकि मैं कुछ अप्रोप्रिएशन तो कर नहीं रहा हूं,
तो 11 महीने की समाप्ति पर यू कैन गिव अ चेक और उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि चेक को अभी डालना मत। चेक तो 3 महीना के अंदर डाल ही सकता है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, पैसा आप ही के फंड्स में भी पड़ा हुआ है, यू आर स्टिल यूजिंग एंड एंजॉइंग दैट मनी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब चौथे महीने के एंडिंग पर आप उसको वो तो आप सिखा रखे थे कि चेक अभी मत डालना, 4th मंथ के एक्सपायरी पर अब वो आपको रिक्वेस्ट करेगा चेक को रिवैलिडेट कर दीजिए। तो दैट इज अ गेम विच कम्स टू माई माइंड एंड आप 5, 5.5, 6 महीना तक इसको और आगे ले जा सकते हैं टिल मिनिस्ट्री कम्स आउट विद सम अमेंडमेंट्स आज के इस रूम के डिस्कशन को सुनने के बाद कि इसको भी कैसा रोका जाए कि लोग वो 12 महीने को कैसे मिसयूज करने का कोशिश करते होंगे क्लाइंट्स। सो दैट मे बी मेड प्रैक्टिकली, आई डोंट नो कि इस पे कोई लिटिगेशन आया है या नहीं आया, बट दैट पॉइंट केम टू माई माइंड कि ये 365 डेज को आप 15-16 महीने तक आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि आप उसको चेक दे देंगे, वो जमा नहीं करेंगे। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग की अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, एक डिस्प्यूट पेपर में दिखला दीजिए कि उसके और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, जबकि आपका वो एकदम राम भक्त हनुमान कस्टमर है या जो भी जान पहचान है। आप एक डिस्प्यूट उत्पन्न कर लीजिए और अगर डिस्प्यूट वाला कुछ स्टैब्लिश कर देते हैं लिटिगेशंस, तो दैट 365 डेज फिर गया हवा में। अभी वो केस मतलब वहां पे कुछ वो 365 डेज के क्लॉज पर आपके ऊपर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन या कोई नोटिस नहीं आएगा। सो दिस इज अनदर लूप होल, या अभी तो फायदा ही है बिकॉज पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस क्लॉज। नेक्स्ट, इफ योर क्लाइंट इज फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड, अब लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है, अरे एडवांस और आता है तो 1 साल के अंदर एडजस्ट करना होता है, 1 साल, especially not amongst us, but businessmen are not so they don't have understanding of so many clauses in detail. They will be basically relying upon us. So real estate वालों के लिए क्लॉज आता है यहाँ पर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई एडवांस आता है जो फाइनली प्रॉपर्टी के परचेज प्राइस में जाके एडजस्ट होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहां पर कोई 365 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग द प्रोविजंस एंड रूल्स टुगेदर, दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वो 365 डेज वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट विद द रियल एस्टेट पर्सन, आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वन शुड नॉट पैनिक बाय जस्ट कि अरे 365 डेज के अंदर एडजस्ट नहीं हुआ, रियल एस्टेट में देयर इज एन एक्सेप्शन। सिमिलरली, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल गुड्स, कोई मशीन के लिए एडवांस आया है, हेवी प्लांट एंड मशीनरी बनने में 1.5-2 साल लगेगा, इंस्टॉलेशन होने में, वहां के लिए अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है तो उस केस में भी दिस 1 year 365 डेज क्लॉज इज नॉट अप्लाइंग। वहां पर एज पर अग्रीमेंट आप चाहे बियॉन्ड 365 डेज भी करते हैं, इफ यू कैन क्लासिफाई योर गुड्स एज कैपिटल गुड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, तो आप यहां फायदा उठा सकते हैं। एंड हियर कम्स दैट पॉइंट कि एलएलपी से जब आप पैसा पाते थे तो वहां वो एग्जेम्प्टेड नहीं होता था, पर अगर आपके कोई परिचित का एलएलपी है और वो वही गुड्स में डील करते हैं जो आपको भी काम आता हो, तो आप इस टाइप से फिर उनसे आप, या उनको वो गुड्स चाहिए जो आप बनाते हो, तो एलएलपी से आप एडवांस ले सकते हैं अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए। या तो एक रास्ता था कि आप एलएलपी को अपना मेंबर बना लेते, एलएलपी को आप मेंबर बना लेते तो वो 100% वाले लिमिट के अंदर वो फायदा उठा लेता, या एलएलपी से आप कोई एडवांस का पैसा ले लेते एंड यू कुड हैव प्लेड विद दिस क्लॉज, देन दैट इज अनदर वे कि वहां पे अपने लोग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में एलएलपी वाज नॉट टेकिंग द एडवांटेज, वाज नॉट गेटिंग द एडवांटेज, बट एलएलपी एज अ मेंबर अगर आप एलएलपी को बना लो तो हो सकता है वो फायदा मिल जाए। सिमिलरली यहां पर अपने देखते हैं कि अगर ये जो वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस के बाद वारंटी या मेंटेनेंस वर्क के लिए भी कई बार क्या होता है, एडवांस का पैसा मिलता है। तो हियर व्हाट दे हैव सेड कि if you're getting any amount in the form of warranty or maintenance and that amount doesn't exceed 5 years, 5 साल का यहां पे दिया गया बिग टाइम पीरियड, और द कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ दैट इंडस्ट्री, कि उस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में व्हाट इज द कॉमन ट्रेंड, तो दोनों में से जो लोअर पीरियड होगा वहां तक आप एडवांस अगर पाते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर स्टिल कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स। यानी एक प्राइवेट कंपनी वारंटी बोल के लोगों से एडवांस की, एक्सटेंडेड वारंटी बोलकर एडवांस लेते जा रही है, 3 साल तक आपको फायदा मिलेगा, तो इट मे बी एग्जेम्प्टेड। अगर उनका कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस 4 साल अलाउ करता है तो आप ऐसे भी बच गए, बिकॉज कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस और 5 years, विच एवर इज लेस इज द एरिया वेयर दे आर प्लेइंग अपॉन। सिमिलरली अगर कोई मीडिया हाउस है जो साल भर के पब्लिकेशन का एडवांस में पैसा ले लेती है, अगर सपोज आपका कोई क्लाइंट न्यूज़पेपर छापता है, अगर वैसे क्लाइंट्स आपके पास हैं,
तो एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन आपके क्लाइंट को मिलते जा रहा है, तो वहां डिपॉजिट सेक्शन नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन whether in print or in electronic will be adjusted against receipt of such publication. So basically this is the most important area जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स हैं एंड दीज एरियाज जो डिटेल में एक एक क्लॉज करके वी एनालाइज दैट दीज आर दोज एरियाज वेयर व्हेन यू आर गेटिंग द डिपॉजिट्स इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स एंड प्राइवेट कंपनी यहां पर फायदा उठा सकता है. प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट लॉट ऑफ डिपॉजिट्स from members as well as from these routes under these routes and they don't have to comply with the deposit section से इनको कोई compliance नहीं करना पड़ेगा. Now another aspect which comes to my mind is when आपके प्रमोटर्स जो हैं वो कई बार कंपनी में कुछ लोन लेके आते हैं एंड प्रमोटर्स जब ये वाला लोन लेके आते हैं क्योंकि बैंक promoters are giving some unsecured loan to the company. So promoter is giving unsecured loan to the company because the bank जो आपकी कंपनी को एक बड़ा लोन दे रहा था वो चाह रहा था कि प्रमोटर का स्टेक भी उस कंपनी में इन्वॉल्व रहे. तो जब प्रमोटर का स्टेक इसलिए इन्वॉल्व कराया गया है बिकॉज the loan agreement provided this clause. A stipulation was imposed by the lending institution. The bank which was giving loan to the company, they said, we will give you more loan provided your promoters also bring in some loan. So the loan which is brought to meet the requirement of bank, that will be exempted, but up to what extent? जब तक वो लोन चुक ना जाए. Once the loan of bank is repaid, तब उसके बाद आप promoters का लोन भी वापस repay कर दीजिए, अब वो exemption नहीं मिलेगा. So promoters loan, because promoters are the most easily available source, कंपनी को जो अगर पैसा चाहिए तो promoters से ले सकता है, पर ये वाला जो लोन है ये deposits नहीं माना जाएगा because this money was brought because the bank required कि we will give the loan provided your promoters stake is also involved, उनका भी पैसा involved हो project में, तो promoters या उनके relatives दोनों भी अगर लोन देते हो चलेगा, but this exemption के लिए time period दिया है, this is available only till the loans of banks or financial institutions are repaid. And there was another catch कि अगर आपका क्लाइंट स्टार्टअप कंपनी है और स्टार्टअप कंपनी को एंजल इन्वेस्टर्स और से बहुत फंडिंग मिलता है, तो स्टार्टअप कंपनीज जो होती है वो जब एक बार में सिंगल ट्रांच एक ही बार में यानी बड़ा इन्वेस्टर है 25 लाख रुपीस और मोर रिसीव करते हैं इस तरीके से. इट शुड बी instrument which will be convertible into equity or repayable within 10 years. So whenever we read law, just we should try to read all the subparts to claim the exemption, because number of times people are under myth startup company जब amount receive करती है वो exempted deposits है. You have to check it is whether it's 25 lakh rupees minimum. अब 20-30 दिख गया तो भी खुश नहीं हो सकते in a single tranche. Then the fourth parameter should be checked that it will be repayable or it will be convertible into equity within 10 years. So there are a lot of things and it's never ending because her clause may whenever you read the second time you get another flavor of interpretation. So it continues forever. Now private company exempted है, private company exempted है, private company को कुछ नहीं करना है, अपने ये धारणा कई बार आ जाती है. But DPT3 30 जून के पहले ये एक एनुअल कंप्लायंस है. DPT3 नाम का फॉर्म प्राइवेट कंपनी को भी फाइल करना पड़ेगा और 2022 मिड में शायद, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, कुछ फॉर्म के अंदर आप लोग प्रैक्टिकली करते हैं, हम लोग तो सिर्फ एकेडमिक्स में देखते हैं कि कुछ अंदर में भी कुछ चेंजेस आए. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शंस, मतलब आई हैवंट फाइल्ड पर्सनली बट दोस चेंजेस हैव आल्सो कम इनटू पिक्चर. पहले सिर्फ आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च देते थे, दिस इज द ओल्ड इंफॉर्मेशन, बट 2022-23 ऑनवर्ड शायद कि आपके ओपनिंग बैलेंस में क्या डिपॉजिट लिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस में कितना, वो अलग अलग से बाइफ्यूरकेट करके एजिंग शेड्यूल भी शायद दिखाना पड़ता है डिपॉजिट्स एंड लोन्स का. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये लोगों को लगता है प्राइवेट कंपनी तो एग्जेम्प्टेड है, उसको नहीं करना पड़ेगा, बट प्राइवेट कंपनी हैज टू ऑल्सो फाइल DPT3 एवरी ईयर ड्यूली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर लिखा हुआ है. वेट, नाउ इसमें मैं 3 क्वेरीज अपने आप से सबके सामने रेज करना चाहता हूं. Is DPT3 required for companies accepting only exempted deposits? Is DPT3 required for nil return of deposits? Is DPT3 required to be certified by auditor
if the company has taken only exempted deposits. So मेरे ख्याल से DPT3 आप अगर डिपॉजिट्स ले रहे हैं तब तो जमा देना ही है. आप अगर exempted deposits ले रहे हैं, I think practically even then you have to file DPT3 even for exempted deposits. Now, is DPT3 required to be certified by auditor if the company has taken only exempted deposits? I don't think it's required. Please rectify me if there are some mistakes, because it's a knowledge sharing program. All of us are learning. And is DPT3 required for nil return of deposits? I think not required. पर अब आपको लगेगा हम तो लेते हैं डिपॉजिट्स पर जमा ही नहीं देंगे, तो लोगों को लगेगा, आरओसी को लगेगा हम निल रिटर्न दे रहे हैं. आप पकड़े जा सकते हैं बिकॉज आपका वो सब जमा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड्स रिपोर्ट, वहां कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर, और आजकल तो सिस्टम इतने रोबस्ट और स्ट्रांग है दैट दे विल हैव अ ट्रेल व्हाट इज हैपनिंग. सो DPT3 के अराउंड these three queries usually sometimes students WhatsApp us from their articleship से सर ये कर रहे थे, ये नील रिटर्न के लिए जाता है क्या? तो ये हमने भी कई बार ये सब क्वेरीज को हैंडल करते करते वी हैव आल्सो लर्न, although in exams they don't ask about these questions. Next, DPT3 I think is not required for government company. गवर्नमेंट कंपनी के लिए DPT3 शायद exempted है. Now this is a very important thing. Private company है, हमको कुछ नहीं करना है, हम लोग का सब चीज relaxed है. No, I think even for private company register of deposits, it's a statutory book. This has to be preserved. Even for private company, it has to be preserved for minimum 8 years from financial year, because there are some registers जो permanently भी preserve होते हैं, because अपने लोग हमेशा books of accounts के साथ relate कर देते हैं. 8 साल का रख लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप मेरे साथ देखोगे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वाले रजिस्टर MBP2 दैट हैज टू बी प्रिजर्व परमानेंटली. बट ये वाला रजिस्टर जो है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, दिस हैज टू बी प्रिजर्व फॉर minimum 8 years from the financial year in which the latest entry is made in that register. So this is basically about private company जो deposits वो लेते हैं, what are exempted deposits. Now इसी के अंदर what we can see that banking का ये broadly section 73 है, banking, NBFCs, housing finance company, इन लोग जब deposits लेते हैं उनको भी ये सब compliance नहीं करना पड़ता है. They have been totally given the big relaxation from all these. और अगर ये पब्लिक कंपनी कोई शेयर होल्डर से लेना चाहती है, अगर कोई क्लाइंट पब्लिक कंपनी है और वो अगर शेयर होल्डर से लेना चाहती है, देन दीज स्टेप्स मस्ट बी कंसिडर्ड. कि पहले आप अगर शेयर होल्डर से भी ले रहे हैं तो एक डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट हो जाए. DPT1 आप ROC को पहले सर्कुलेट जमा दीजिए, फिर मेंबर्स को दीजिएगा, फिर मनी आने के बाद 21 दिन के अंदर रिसीट दे दीजिएगा, 7 दिन के अंदर रजिस्टर में एंट्री हो जाए. But of course, private company don't have to comply with these things. And there is a very important thing. अगर public company आपकी client है, वो members से ले रहे हैं, तो उनको एक DRR बोल के एक reserve maintain करना पड़ता है. That is deposit repayment reserve. And as the name sounds, ये deposit के repayment के लिए use होता है. So 20% of the deposits which are maturing during the next financial year. Suppose आज है 1st April 2025, तो 31st March 2026 तक जो भी डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाले हैं वो ऑन और बिफोर 30th April 25 के पहले ही 20% ऑफ द डिपॉजिट्स DRR में मेंटेन हो जाना चाहिए, ना शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट, सेपरेट अकाउंट. So basically 11 months पहले ही this money has to be deposited. But of course all these things are not for private company. Private company को relaxation मिल गया इन सभी चीजों से. And public company norms are very stringent. Public company अगर public से उठाएगा then lot of formalities are there. ये deposits का section इतना importance क्यों gain किया, इसका reason आप लोग शायद सभी जानते हैं, that there is a big penalty coming into picture, 76A if I am not wrong. तो 76A में बहुत बड़ा पेनल्टी का फीचर यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया गया था कि कंपनी के ऊपर ऐसा फाइन लगेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन भी है एंड इम्प्रिजनमेंट भी है. दैट इज इट इज नॉट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, कि पहले कंपाउंडिंग जो करवा लेते हैं ना अपने, तो ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है बिकॉज दिस ऑफेंस इज कंटेनिंग द वर्ड एंड. तो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों लग जाता है ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पर, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है. तो दैट इज वाई पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ दिस सेक्शन. एंड ऑफ कोर्स अगर डिपॉजिटर का पैसा कोई भी कंपनी अगर नहीं देगी, डिपॉजिटर कैन ऑल्सो अप्रोच NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाकर भी वो अप्लाई कर सकता है. देन NCLT ऑर्डर विल कम इनटू पिक्चर.
Now, if you feel I am a private company, I will not comply with NCLT order, ऐसे बहुत ऑर्डर आते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कारो के अंदर आपके उस डिपॉजिट्स के उस नॉन कंप्लायंस के बारे में कारो रिपोर्टिंग भी पिक्चर में आ जाएगा. सो व्हाट आई हैव सीन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग टीचिंग दैट लॉट ऑफ थिंग्स कम टुगेदर. आप 73 अगर डिस्कस कर रहे हो तो इवन कारो कम्स इनटू पिक्चर. और अगर पब्लिक कंपनी का एंगल होता तो 73 डिस्कस करने के समय सेक्शन 180 भी पिक्चर में आ जाता, बिकॉज सेक्शन 180 टॉक अबाउट द लिमिट्स ऑन बोरोइंग्स, जो प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं करता है. When we are talking about section 73 in case of public company, even that angle will come into picture, that is section 180 borrowings की limit के ऊपर जो एक cap है कि उसके ऊपर आपको prior SR in general meeting pass करना पड़ेगा. So what is my advice, that whenever a client asks about deposits, think from broader perspective, think about section 73, simultaneously think about exempted deposits and the repercussions सिर्फ 76A के context में नहीं, कारो रिपोर्टिंग में आए वो एस्पेक्ट भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रॉम द रिसीविंग कंपनीज एंगल. But of course 180 is not coming into picture in the case of private company. 180 is basically for public companies कि borrowings अगर आपके लिमिट के ऊपर करते हैं तो आपको prior SR चाहिए. So now after this topic of deposits we will move to 186, and now everything is from giving companies angle. इसके पहले जो डिस्कस हो रहा था that was from receiving companies angle. 186 है कि जो कंपनी लोन देती है, कई बार क्या होता है आपको लोन मिल रहा होता है और आप कोई बिजनेसमैन लोग यूजुअली सोचते हैं अरे हमारे ऊपर वो आ रहा है, डिपॉजिट आ रहा है, डिपॉजिट के सेक्शन लग जाएंगे. डिपॉजिट जो लोन देने वाला कंपनी है उनको 186 कंप्लाई करना है, रिसीविंग को 73 कंप्लाई करना है. Yeah, that is the main discussion. Members are shareholders. Private company are taking loans from shareholders up to 100%, कभी कभी more than 100%, और कई बार ये जो exempted वाले routes के अंदर तो बहुत कुछ है. Now giving, yeah. The word loan is used, DPT3 में जो loan word use होता है, जो filing के समय मैंने जो पढ़ा है, that loan is also a deposit. हाँ, शेयर होल्डर्स, अच्छा अच्छा 2022 वाले में, अच्छा उसी में अटैचमेंट के रूप में. ओके, बट बेसिकली इंटेंशन है, वो शायद फॉर्म के फॉर्मेट में परिवर्तन आया होगा, बट इंटेंशन इज नॉट टू, या इट इज अ रिक्वायरमेंट, because there's no such clarification that they have removed. Have they removed? I don't think. Yeah, members वाला वैसे तो exempted है up to 100%. हाँ, जगह नहीं दी है. Okay. हम्म. हम्म. What are people usually doing? मतलब I am not aware of this. कि are they filing an attachment along with DPT3? Okay. Okay. So there's no uniform practice until any clarification is given by MCA. Okay. So this change has not benefited, it has created more confusion. Now coming back to section 186, I'll have. Right. हाँ, ये भी नहीं था. आई थिंक बहुत रिप्रेजेंटेशन जा रहे होंगे, जल्दी चेंज आ भी जाएगा. Now coming to section 186. Now section 186 में 4 parts है: loan, investment, and guarantee and security in connection with loan. Now
many people misinterpret this line because लोगों को लगता है कोई भी परफॉर्मेंस गारंटी अगर किसी के लिए दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, that will also trigger 186. It's not the case. 186 is triggered when guarantee or security in connection with loan is given. Now, let me try to break it up into three aspects. When a company is planning to give loan to any person, ये जो any person word है is actually very vast, क्योंकि जो old company law था section 372A, उसमें any person word नहीं था. और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, यानी आप एलएलपी को भी अगर देते हो तो भी ट्रिगर हो जाएगा, और वैसे भी देखिए एनी पर्सन लिख ही दिया था. और गिव गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ लोन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, यानी लोन कवर्ड है टू एनी पर्सन, गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ लोन इज कवर्ड, एवरी गारंटी इज नॉट कवर्ड. एंड पॉइंट सी, कैसे भी अगर आप अक्वायर करते हो सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, then this section will trigger. Now, is section ka beauty, because this section is very close to my heart. When I started teaching in 2001, this was one of the first sessions which I took. तो 186 में सबसे पहला ब्यूटी आपको दिखता है, इसका सेक्शन का ड्राफ्टिंग बहुत डिफिकल्ट किया हुआ है, but when you try to split it up into various sub parts, then it seems to be very simple. यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है. आप कोई भी अगर LIGS कर रहे हैं, when I call it LIGS, I mean loans, investment, guarantee, security in connection with loan. आप कोई भी LIGS अगर करना चाहते हो तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा with the consent of all directors present at board meeting. इसमें शुरू में लोगों को बहुत confusion होता था, अब तो I think all of us are well versed with it. Suppose there are 10 directors present at board meeting. Present हो सकता है कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हो, मीटिंग में 10 ही आए हो. 2 did not vote, 8 voted, all 8 voted in favor. So can we say that the client has complied with the consent of unanimous board resolution? No, because the language is all directors present at the board meeting. And at board meeting also clarifies this matter cannot be discussed by resolution by circulation, जो एक substitute होता है, but this matter cannot be done by resolution by circulation. It can be done only at board meeting with the consent of all directors present. पूरे कंपनी लॉ में 2 या 3 जगह ही है जहां UBR देखने को मिलता है. दिस इज वन ऑफ सच ब्यूटीफुल सेक्शन जहां पे सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट को हाँ बोलना ही पड़ेगा अगर मीटिंग में आ गए हैं तो, एंड इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दैट. सेकंड एस्पेक्ट 186 सबसेक्शन 2 और 3 में लिखा है कि समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, प्रायर, एंड व्हेन आई से प्रायर इट मींस इट हैज टू बी प्रायर. काम करने के बाद आप रैटिफिकेशन नहीं करवा सकते. प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड. अगर अभी तक आपने कितना कर दिया है आज की डेट तक, सब एग्रीगेट कर लीजिए, LIGS, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन, और कितना करने का आप सोच रहे हो. इफ यू एड, दैट इज द एग्रीगेट, एंड इफ दैट फिगर इज एक्सीडिंग हायर ऑफ द बिलो 2, देन प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. यानी क्लाइंट को एडवाइस करना पड़ेगा, आप अगर और करने का सोच रहे हो तो पहले देख लीजिए आप कितना ऑलरेडी कर चुके हो, एंड व्हेन इट एक्सीड्स हायर ऑफ द बिलो 2, then prior special resolution is required. Now इसमें एक advisory note ये है, जैसे ये एक रेजोल्यूशन मैंने किसी कंपनी का उठाया था, इसमें जब अपने लोग ड्राफ्ट करते हैं, अपने कई बार क्या करते हैं, इफ समवन इज नॉट वेरी केयरफुल अबाउट दिस एस्पेक्ट, जस्ट पेस्ट कर देंगे कि हाँ रिजॉल्व दैट, उसको कंसेंट कर दिया है, वो एक्सीड कर लेगा, पेड अप कैप ये हायर ऑफ द फिगर चला जाएगा. बट व्हाट पीपल डू समटाइम्स, अगर कोई अमाउंट लिखना भूल जाए, कितना एक्सेस अलाउ किया गया है, सम के ऊपर एक अपर कैप नहीं लगाएंगे, then that resolution can be challenged later and it is null and void. That is always advisable. Blanket resolution कि बस excess draw करने का resolution pass कर दिए थे, that will not help. SR must specify the limit up to which it can exceed, कि किस amount तक आप exceed कर सकते हो. आप बोलोगे हाँ रिजॉल्व तो हो ही गया था कि उठा लीजिए ज्यादा अमाउंट, बट कितना ज्यादा तक आप उठा सकते हो, that upper cap has to be specified. Otherwise this resolution is ineffective. तो एक चीज हमेशा लगता है, but second चीज लग भी सकता है, because you have to make a check whether this is happening or not. Next, third aspect, very important aspect, आप अगर ये सोच ले हम UBR करके कर लेंगे, पर ये चेक करना पड़ेगा आपकी कंपनी अगर डिफॉल्ट में चल रही है, कोई से डिपॉजिट्स उठा के उसका डिपॉजिट्स का पैसा अगर नहीं दे पा रही आज के दिन, आप नहीं कर सकते हो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स. UBR करके कर लेंगे सर, है ना प्रोविजन पड़ा हुआ है. नो, यू कैन नॉट. If the company is in default in the repayment of existing deposits, you cannot make till the default is remedied. भूल सुधारने के बाद आप कर सकते हो,
बट जब तक दूसरों का पैसा आप नहीं चुकाओगे, गांव में और लोन इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डन. Now, sometimes if your company has taken some term loan, then prior approval of PFI comes into picture. जब भी आप टर्म लोन लेते हो and if your company is a defaulter, then prior approval of PFI comes into picture. But the beauty part is, even if you are not a defaulter, prior approval of PFI might come into picture if these limits are exceeded. अगर ये limits exceed हो जाए, even if you are not a defaulter, prior approval of PFI might come into picture. The fourth line of attack, which all of us know, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, 7 दिन के अंदर एंट्री हो जाना चाहिए. मतलब जो भी आप बैक डेट से भी एंट्री करते हैं क्लाइंट के लिए, तो देखिएगा that 7 days is ensured, and this register is preserved permanently, not for 8 years. 8 years वाली बात बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए थी, आज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स पढ़े थे वहां थी. This register is preserved permanently. नाउ ये ग्रुप कंपनीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है कि फंडिंग मिल जा रहा है होल्डिंग कंपनी से. तो इफ समवन फील्स दैट दे आर माय ग्रुप कंपनीज, हम 0% इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे, इट्स नॉट अलाउड इवन इन कंपनी लॉ. इनकम टैक्स तो क्वेश्चन करेगा, आई डोंट नो फ्रॉम विच व्हाट एंगल्स, बट यहाँ पर लोन अगर दिया जा रहा है ग्रुप कंपनीज को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी लोअर दैन द यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी उस लोन के क्लोजेस्ट पीरियड में होगा. सपोज आप 9 साल के लिए लोन दे रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के 10 ईयर यील्ड वाला रेट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. उतना मिनिमम आना चाहिए, उससे लोअर आप नहीं जा सकते. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम क्लाइंट्स जस्टिफाई, अरे सिस्टर कंसर्न था, ग्रुप कंपनी था, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ यील्ड रेट है, वो भी उस लोन के पीरियड के आसपास के सिमिलर बॉन्ड के रेट के साथ कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा. नेक्स्ट एस्पेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि सेक्शन 186 में इतना कुछ वी रीड, यूबीआर लगता है, हमेशा सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट की कंसेंट, लॉट ऑफ थिंग्स. ये जो बड़ा सा एक ये बेयर एक्ट का पोर्शन है, आई हैव जस्ट कॉपीड फ्रॉम द बेयर एक्ट, कि ये कंपनीज को सेक्शन 186 कंप्लाई नहीं करना है. दिस एंटायर सेक्शन डजंट हैव टू बी कंप्लाइड बाय दीज कंपनीज. नाउ इसके लिए आई हैव ट्राइड टू ब्रेक दिस एंटायर डिस्कशन इनटू वन ब्यूटीफुल चार्ट, जिसे आप एक ग्लैंस में पूरा समझ सकते हो. When a banking company gives LIGS, loans, investment, guarantee, security, तो उनको चारों पिलर्स में गुड न्यूज मिलता है. लोन भी दे सकते हैं, गारंटी भी, सिक्योरिटी भी, इन्वेस्टमेंट भी. दिस चार्ट हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ बेयर एक्ट इंटरप्रिटेशन. ये जस्ट कोई ऑर्नामेंटल चार्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ बेयर एक्ट में लैंग्वेज वॉज वेरी क्लियर. लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट. दैट इज वाई वहां पे मैंने उस टेबल में प्लॉट कर दिया दैट ऑल फोर पिलर्स में सक्सेस मिल रहा है. तो आपको लगेगा हाँ वो तो मिलेगा ही चारों को. नाउ लेट अस कम टू दीज टू. ये दो में देखने लायक चीज है, बिकॉज इन दो के लिए ऑल 4 पिलर्स आर नॉट अवेलेबल. एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस होता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, या जिसमें 50% ऑफ द इनकम उस टाइप के इन्वेस्टमेंट इनकम से आता हो, या उसके एसेट्स में भी 50% कॉम्पोजिशन मिनिमम शेयर्स वाला हो, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को प्लीज बी केयरफुल. इन्वेस्टमेंट कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट जब वो किसी में करते हैं वो एग्जेम्प्टेड है 186. कल को आपका क्लाइंट कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो लोन देना चाह रहा है, एंड इफ यू कीप दैट मिथ इन योर माइंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड है, दैट थिंग डजंट वर्क, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्टेड है, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड नहीं है. सिमिलरली एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड विद आरबीआई है और जो लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करते हैं, NBFCs registered with RBI engaged in lending and investment activities, उसमें भी guarantee और security exempted नहीं है. Only loans and investments are exempted. So these sections, if not read carefully, can basically a big troublesome section, because Bear Act, if we read the Bear Act में देखिए 186(11) में अगर आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है to any investment made by investment company. Next aspect लिखा हुआ है investment or lending activities by NBFC is registered and whose principal business is investment. So they are not getting exemption from guarantee security loan. यानी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी किसी को लोन देता है, they have to comply with section 186. Only exemption was from investment activities. या कोई कंपनी राइट्स इश्यू स्कीम में किसी कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करती है, पहले जब उसने इन्वेस्ट किया था they must have complied with 186. Now under the rights issue scheme अगर आप फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको exempted है. But the real catch is this particular aspect कि
कौन सा चीज कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्टेड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And the most important myth, because कई बार students, because all my queries are designed on the basis of my classroom session, और जब students कभी पूछते हैं, व्हाट्सएप आता है सर एक जगह फंसे हुए हैं, आप फ्री होने से बता दीजिएगा. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लोन गारंटी सिक्योरिटी जब एक कंपनी अपने 100% सब्सिडरी को देता है, उसमें कुछ एग्जेम्पशन है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अग्री. ओनली 186(3) से एग्जेम्पशन है, यानी कि 186(3) में एसआर वाली बात थी. लोग सोच लिए कि जब कंपनी 100% सब्सिडरी को लोन देते हैं, दिस इज अ वेरी पॉपुलर मिस्टेक विच मेनी पीपल मस्ट बी डूइंग. हाँ हाँ, 100% सब्सिडरी तो एग्जेम्प्टेड है. जब लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया जाता है एक कंपनी का 100% सब्सिडरी को, या लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया जाता है एक जॉइंट वेंचर कंपनी को, ये एग्जेम्प्टेड है. वो भी इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्टेड है या नहीं है, देखते हैं आगे. नेक्स्ट एस्पेक्ट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट या कोई भी तरीके से आप एक्वायर कर रहे हो 100% सब्सिडरी में कोई दूसरा. अब आप बोलोगे 100% है तो हम और आगे कैसे इन्वेस्ट करेंगे. इट मे बी अनदर सिक्योरिटी, नॉट नेसेसरली इक्विटी, हो सकता है उसके आप कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स एक्वायर कर रहे हो, देन दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई. बट कैच इज, अगर ये सिर्फ नॉर्मल सब्सिडरी होता 65% 70%, देन दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल. And even if this exemption is available, this line is a very important line. All other formalities are to be complied. मतलब UBR लगेगा. आप बोलोगे अब ये तो exempted है, मैंने खुद देखा है, बेयर एक्ट देखा है. बेयर एक्ट में भी अगर आपने पढ़ा होगा, ये 186(3) के प्रोवाइजो क्लॉज के अंदर डाला हुआ है, तो ये सिर्फ उसी से exempted होगा जिसका वो प्रोवाइजो है. So all other formalities of 186 will be complied. यहां पर मुझे एक इंटरप्रिटेशन नजर आता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो अपने जॉइंट वेंचर में, व्हाट इज योर व्यू व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन योर जॉइंट वेंचर कंपनी, विल इट बी एग्जेम्प्टेड और नॉट एग्जेम्प्टेड. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन योर जॉइंट वेंचर, तो यहां पर देखिए जॉइंट वेंचर में लोन्स गारंटी सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड था, और एक्विजिशन में ब्रैकेट में वो लिख ही दिया मैंने, नॉट जेवी कंपनी, यानी जेवी कंपनी में इन्वेस्ट करने के समय एक बार आपको 186 का पालन करना पड़ेगा. You cannot be exempted from joint venture company because the language is only wholly owned subsidiary, और वहां acquisition word के साथ इसका relation है. So that is a very important catch. I think in any law एक पहला रूल जो हम लोग पढ़ते हैं, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, वो फॉलो करना चाहिए. Of course, when that cannot be applied, we go to rule of reasonable construction, rule of harmonious construction, ejusdem generis, many other rules. But first of all, rule of literal construction के अनुसार अगर जाएं तो it seems to be very clear that what is exempted, कौन से aspects कहां पर exempted है, बहुत clearly दिख रहा है. Now another aspect which comes into my mind कि आप डिपॉजिट्स अगर रिपेमेंट कर रखे हो तब तो 186 कर ही नहीं सकते, चाहे आप यूबीआर पास कर लो, एसआर पास कर लो, नथिंग कैन बी डन. इफ डिपॉजिट्स का वायलेशन चल रहा है देन 186 नहीं कर सकते. रजिस्टर्ड ऑफिस में एमबीपी 2 में आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा. दिस रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन्ड, एमबीपी 2 वाला रजिस्टर. एंड अगर 186 का भी वायलेशन चल रहा है देन ऑडिटर साहब वापस जिंदाबाद. कारों में आई थिंक 185 186 all these reporting requirements are there. And कारों में तो loans से related बहुत reporting है, but sometime it is from receiving company, loan received वाला, and this is from loan giving companies aspect. So loans तो भर भर कर कारों में I think there are many clauses nowadays related to loans. Now look here, this is another very important area. कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, प्राइवेट कंपनीज यूजुअली आई डोंट थिंक ऐसे लेयर्स को इस्तेमाल करती है. बड़ी पब्लिक कंपनीज, वो 2G 3G स्कैम में ऐसा बहुत कुछ हुआ था. दे कैन नॉट इन्वेस्ट थ्रू मोर देन 2 layers ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज. व्हेन आई टॉक अबाउट लेयर्स, सपोज वर्टिकल लेयर्स प्राइमा फेसी हम समझते हैं, ए प्राइवेट लिमिटेड के नीचे, बी प्राइवेट लिमिटेड उसके नीचे, सी प्राइवेट लिमिटेड, दिस मे बी अलाउड आई थिंक, बट डी प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू फिर आप और नहीं कर सकते. बट देर आर ऑफ कोर्स एग्जेम्पशंस है कि आप सपोज कोई इंडिया के बाहर वाले किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो जिसकी बाहर में इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज है और वो फॉरेन लॉज के अनुसार परमिसिबल है, देन दैट माइट बी वन एक्सेप्शन. तो प्राइवेट कंपनीज में नॉर्मली, फैमिली ओन्ड कंपनीज में इतना स्ट्रक्चर कोई एक या दो आपको देखने को मिले, यू विल नॉट सी सच स्ट्रक्चर्स. सो वर्टिकल चेन में आप 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू one cannot make investment through more than 2 layers. Now investment company definition we have already done, that what was an investment company. So 186 में the key takeaway जो मेरे को लगता है 186 में key takeaway would be understanding कि what was the exemption,
एग्जेम्पशन नेम ऑफ द कंपनीज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एडवाइसिंग द क्लाइंट, और अगर आप खुद बिजनेस में हैं और आप ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो एग्जेम्पशन के अलावा वो कौन सा एग्जेम्पशन कौन से एस्पेक्ट के लिए मिलता है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. एंड ये इसको लेके एक्चुअली में in 2013-14, because I was a teacher, I am a teacher, I was traveling to Ficky House and ASSOCHAM for attending conferences की समझने के लिए कि सबके व्यूज क्या हैं. तो इसको लेकर बहुत झमेला था. फाइनली 2015-16 तक एक स्टेबिलिटी आया दैट हाउ टू इंटरप्रेट दिस सेक्शन, बिकॉज प्राइमा फेसी व्हेन वी रीड, हाँ बैंकिंग कंपनी एग्जेम्प्टेड है, हाँ इन्वेस्टमेंट कंपनी एग्जेम्प्टेड है, बट जब तोड़ तोड़ कर जोड़ते हैं देन द थिंग्स बिकम वेरी क्लियर. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 185. नाउ प्राइवेट कंपनीज के लिए ऑफ कोर्स सेक्शन 185 का एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, और हम लोग यही समझते हैं कि 185 में प्राइवेट कंपनी नहीं लगेगा. 185 का जहां तक बात है आपको शायद पता ही होगा. 185 में एक एस्पेक्ट अगर मैं पब्लिक कंपनी के एंगल से बोलूं, 185 सबसेक्शन 1, एक कंपनी लोन नहीं दे सकता अपने डायरेक्टर को, लोन नहीं दे सकता अपने रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को, फर्म को जिसमें डायरेक्टर या रिलेटिव पार्टनर हो. एंड दिस इज बेसिकली कि एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन दे आर नॉट डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स और पार्टनर, ये प्रोहिबिशन है. नाउ 185 सबसेक्शन 2, इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आप कर सकते हो, बट करने के पहले कुछ कुछ केस में आपको ये सब चीजों का कंप्लायंस करना पड़ेगा. दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट टुडे बिकॉज पब्लिक कंपनी का एंगल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बट अगर मेरी प्राइवेट कंपनी को ये अवेलेबल नहीं हो बेनिफिट, कब ऐसा दुर्भाग्य होगा? लुक एट द स्क्रीन्स दैट प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्टेड तो हो जाती है 185 से, ये पूरा जो था जो मैं अभी आज टच नहीं किया हूं, पर अगर इफ माई प्राइवेट कंपनी इज of these satisfies these conditions, then it will be exempted. जिसके शेयर कैपिटल में कोई दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच. जब कोई आता है कि बताइए एग्जेम्पशन होगा कि भाई जी मैंने बताओ एग्जेम्पशन, आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन. मारवाड़ी समझ में आता है, बोल नहीं पाता हूं उतना अच्छे से. एग्जेम्पशन मने मिलसी या कोनी मिलसी, तो आप बोल देते प्राइवेट कंपनी है, थाने कहीं चिंता है एग्जेम्पशन मिल जासी. बट अगर वो प्राइवेट कंपनी में देखिए आपकी वो क्लाइंट कंपनी ने शेयर कैपिटल में दिखा रहा है कि दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट्स का इन्वेस्टमेंट अगर आपको झलक आ जाए तो दे आर नाउ डिस्क्वालिफाइड, उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. अब वो जो करना चाहे रेस्ट्रिक्शन वाले केस के एम्बिट के अंदर जो फॉर्मेलिटीज होता है वो करके कर सकते हैं. या बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, एफआईज और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन दीज पॉइंट्स एंड सच कंपनी इज नॉट इन डिफॉल्ट. आज के दिन इसकी कोई ऐसी गलतियां नहीं चल रही हो, even that has to be seen. Otherwise, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है and then 185 attracts to those private companies, ऐसे सिचुएशन में these things have to be kept in mind कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी एक दूसरे प्राइवेट कंपनी को देना चाह रही है लोन, जिसमें इधर का डायरेक्टर उधर भी डायरेक्टर हो, सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करूं और उधर पे अगर मैं बात करूं जेड प्राइवेट लिमिटेड की, तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू डाइवर्ट द फंड्स, और किसको इसमें मिस्टर ए डायरेक्टर है और इधर भी मिस्टर ए डायरेक्टर है, या इधर मिस्टर ए डायरेक्टर है इधर मिसेस ए डायरेक्टर है, मिसेस ए मेंबर है, देन द सेक्शन विल अप्लाई और नॉट अप्लाई. टेल मी अबाउट द फर्स्ट वन, व्हाट इज योर व्यू? मिस्टर ए दोनों में डायरेक्टर हैं, मिस्टर ए दोनों में डायरेक्टर हैं और वो प्राइवेट कंपनी एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट सैटिस्फाइड दोज कंडीशंस, देन इट विल बी गवर्न्ड. बट मिसेस ए डायरेक्टर अगर हैं तो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज क्या लिखा है, डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर. अगर डायरेक्टर की रिलेटिव प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है तो उसकी वाइफ को देखकर आप मत घबराइए, वो डायरेक्टर घबराएगा. सो डायरेक्टर की रिलेटिव अगर वहां डायरेक्टर है तो सेक्शन 185 विल नॉट ट्रिगर, because the language is private company in which director is a director or a shareholder. चाहे शेयर होल्डिंग परसेंटेज कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे ही यहाँ पे और भी क्लॉजेस थे जो पब्लिक कंपनी के एंगल से ऑफ कोर्स ज्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं. प्राइवेट कंपनी या तो एग्जेम्पशन क्लॉज का फायदा उठा लेती है, या ज्यादा से ज्यादा लोग यूजुअली पॉइंट ए को लेकर खेलना चाहते हैं प्रैक्टिकली. अरे प्राइवेट कंपनी को लोन देना है पर हम इधर भी डायरेक्टर है उधर भी डायरेक्टर है, देन आप फंस जाएंगे. देन एसआर इन जीएम एंड ऑल दोज कंडीशंस व्हिच यू कैन रीड, ये सब पिक्चर में आ जाएगा. बट इन द नॉर्मल सिनेरियो आप देखोगे यहां पर डायरेक्टर और वाइफ ऑफ डायरेक्टर अगर डायरेक्टर है तो ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा. सिमिलरली देयर वर लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस इन 185.
जो I think all of us are well aware about, loan to MDWD as a part of their service agreement that can be given. लोन अगर आप देते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ये सब जो कंपनी का काम ही लोन देने का होता है एनबीएफसीज, और देन देर आर लॉट ऑफ रिलैक्सेशंस इन दिस एस्पेक्ट. एंड यहीं पर एक एस्पेक्ट और है कि अगर लोन होल्डिंग कंपनी अपने 100% सब्सिडरी को देता है तो यहाँ पे भी उसके बारे में कुछ एग्जेम्पशन लिखा हुआ है. गारंटी अगर होल्डिंग कंपनी देता है तो ये वाले गारंटी जो होते हैं बैंक लोन वाले, बैंक लोन के लिए अगर होल्डिंग कंपनी गारंटी देता है, इस केस में अगर वो बैंक लोन इन्वॉल्व है तो सब्सिडरी 100% सब्सिडरी नहीं हो तो भी काम चल जाता है, प्रोवाइडेड द लोन इज यूज्ड बाय सब्सिडरी कंपनी फॉर इट्स बिजनेस एक्टिविटीज. तो ये ज्यादातर आपको प्राइवेट कंपनी में ये वाला एस्पेक्ट ट्रिगर ही नहीं होगा, बिकॉज दे विल यूजुअली टेक, योर क्लाइंट्स विल यूजुअली टेक द शेल्टर ऑफ दिस क्लॉज, एंड यू विल ऑल्सो एडवाइज द क्लाइंट कि पहले ये थोड़ा सफाई करवा लीजिए, अगर ऐसा ऐसा है पहले ठीक करके आइए, देन यू विल प्लान द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली. So this is basically only private companies angle which we have tried to cover: deposits, exempted deposits, LIGS section 186 and 185 so far as private companies angle is concerned. Company law and Caro reporting, some aspects have been discussed. So if anyone has any query, we can share our ideas, thoughts. Anybody has any questions? I thought there'll be lots. Yes. Which one? Which table? Intercorporate loans. Exemptions? Yeah, I'll just. No. But they can give, then they have to comply with 186. Exemption is not available for guarantee. Yeah, this is the exemption table. Exemptions at a glance. Yes, yes. तो exemption नहीं दे exemption मिल गया है, but they have to, मतलब exemption नहीं मिला है, but if they want they can give after complying with 186. किसमें? Advance, appropriated, deposits वाला, right? हाँ, appropriated लिखा हुआ है. हाँ, मेरे को उस इंटरप्रिटेशन में दम लगता है कि एडवांस इज अप्रोप्रिएटेड, मतलब फुल अप्रोप्रिएशन नहीं लिखा हुआ है. द प्रोसेस ऑफ अप्रोप्रिएशन मस्ट हैव स्टार्टेड. हाँ, तो उसलिए शायद जब तक नहीं एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, देन द वर्ड्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड लिबरली टिल द एमसीए क्लैरिफाइज. नहीं, कंप्लीट वो नहीं लिखा है. सच एडवांस इज अप्रोप्रिएटेड. सो अप्रोप्रिएटेड इज द प्रोसेस कि आप अभी काम शुरू कर दिए हैं. ऑर्डिनरी कोर्स में तो लगता ही है प्रोसेसिंग तैयार करने में, फिनिश गुड्स को मोल्ड करने में, तैयार करने में. तो हैव एनीवन कम अक्रॉस सम नोटिसेस रिलेटिंग टू दिस? कोई आरओसी से कि आपने एडवांस का पूरा पैसा क्यों यूज नहीं किया? फिर तो सप्लाई कर देता ना, या तो दे वुड हैव रिटन द गुड्स शुड हैव बीन सप्लाइड विद इन 365 days. They haven't written the goods have been supplied. The word is advance is appropriated against the supply of goods. So इसलिए शायद इस क्लॉज का फायदा उठा सकते हैं. तो आप भी इसको वर्ड टू वर्ड वो वैसे इंटरप्रेट करके हाँ करिए, पेश कर सकते हैं. Amit, हाँ, process should have started. I am not a man of company law. I am from tax, but still I am asking one question. As you referred about the advance Which 12? For Sunday creditors, as Hmm. for supply and for plant and machinery and for land. But in Calcutta, I have seen in large number of companies, we find loans and advance so many names with no purpose, no reason, nothing. When ITO during course of scrutiny, I'm very practical question I am raising. When ITO asks in the scrutiny what is the purpose, the client says, sir, no purpose, हमने तो ऐसे जमा कर लिया. So what is the consequence or how it can be dealt? नहीं, consequence Very practical, I think. बुकिश कॉन्सेप्ट यही है कि वो पेनल्टी ट्रिगर होगा आरओसी वाला. हाँ, पर शायद आरओसी ऑलरेडी ओवरबर्डन, अभी तक बच जा रहे हैं. आपका इनकम टैक्स ऑफिस बहुत से ज्यादा company मिलेगा ऐसा, बहुत कॉमन है. इनकम टैक्स ऑफिस ज्यादा जगह हुआ है, तो दैट इज बैड फॉर अस. पर ऑडिटर तो कुछ नोट देता नहीं है ना, इसमें वायलेशन है. ऑडिटर नोट देता नहीं है. एंड ये जो एडवांस है ईयर टू ईयर चल रहा है, मतलब कई सालों से चल रहा है.
हुआ, बिल नहीं हुआ, इससे चल रहा है. So you can give reasons. Sir, your place which I like, you always say you're an academician, practically different. Truth today is, अच्छा whatever जो violation हुआ था जो स्क्वायर ऑफ क्या हो सकता है उसको सपोज शुड ऑडिटर क्वालिफाई नो I आरओ तो करना ही है बोले हाँ, कारो रिपोर्टिंग आपका जो ही हैड अ क्वेश्चन दैट देयर इज अ क्लाइंट कंपनी जिनके ऊपर 185 की वायलेशन का नोटिस आ गया. कारो नहीं नोटिस कुछ नहीं है तो आज 24 हुआ अच्छा. व्हाट टू डू माने ऑडिट हुआ माने सितंबर को एजीएम करना है यूनिट लेने का टाइम में एवरीबॉडी नो व्हाट इज हैपनिंग तो आई तो क्या करना चाहिए कारो रिपोर्टिंग करवा दीजिए अगर इफ यू आर हैंडलिंग द क्लाइंट कंपनी वायलेशन. व्हाट कैन बी द वर्स्ट देन ऑफ कोर्स वो ट्रिगर होगा, सिस्टम में जाएगा, फिर नोटिसेस आएंगे 185 का जो लास्ट सेक्शन. नहीं नहीं, यू कांट इग्नोर. हाँ, I आती होगी पर स्लो. आरओसी ऑफिस एवरीवन इज अवेयर इट्स स्लो. इनकम टैक्स में आई थिंक या इट मस्ट दे मस्ट बी गिविंग द नोटिसेस. फिर क्वांटम ऑफ लोन कितना है, वो कंपनी कितना बड़ा है लाइमलाइट में, उसके हिसाब से डिपेंड करता. बाकी फिर जैसा लक होगा उस हिसाब से. ये जो Amit, हाँ you referred about the default. In case of default, or the loan or it cannot be taken. So how the default is proved? Whether by any case law, any litigation, any suit to be डिफॉल्ट ऑफ filed or डिपॉजिट्स वो तो क्लाइंट को पता रहेगा ना कि उन्होंने ड्यू डेट पे डिपॉजिट्स का रिपेमेंट नहीं किया. सो दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट, नॉट अलाउड टू गिव द लोन्स. अगर किसी का डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड का रिपेमेंट नहीं चल रहा है, दे कैन नॉट गिव टिल द डिफॉल्ट इज रिमेडिड. व्हिच वन? या बिकॉज वो दैट सबसेक्शन इज बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कंपनीज है. तो पब्लिक कंपनी के लिए वो वाला एस्पेक्ट आ जाता है. अदरवाइज प्राइवेट कंपनी कैन टेक दिस शेल्टर. प्राइवेट कंपनी शेल्टर करे, हमारा रिपेबल ऑन डिमांड है, हमारा तो नहीं है. पर सेक्शन क्योंकि पब्लिक को भी अप्लाई करता है, तो पब्लिक कंपनी के लिए तो डिपॉजिट्स के स्कीम्स होते हैं ना, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स. So they have to comply. So what Parasji raised, same question, default in repayment of deposit. Now whether this deposit includes exempted category also? I don't think, because exempted deposits में तो ऐसे ही exempted है सब चीज. तो No, exempted we are talking about yeah. giving of loan. हाँ हाँ, Suppose I have आप taken लोन देना loan चाह रहे from, हैं, I have taken loan from another body corporate. ठीक है. Okay, and I am not repaying it. Yes. They have issued notices. 138 notices has been given, Right. and at the same time, I am also giving loans. What Parasji raised. So Private my- company. Private company. My query is that default from only deposits where DPT has been filed. That is in question. नहीं, DPT 3 तो exempted deposits में भी जाएगा, Right. तो उसमें भी reflect हुआ होगा. हुआ होगा. तो अगर good secretarial practice यही होगा that in that case they should not do. No, As a good secretarial no, practice. No, good, not good. Question is, it is now challenged. That's why whether the defaulter, well, suppose I Still, I don't think it will go, because deposit की definition में लिखा था it doesn't include exempted deposit. The first line जो rules में लिखा हुआ है, deposit means any receipt of money or loan, but does not include those deposits. So exempted deposits इस 186 के अंदर फिर उस हिसाब से नहीं आना चाहिए. नहीं आना चाहिए. Because deposits की definition में लिखा हुआ है that exempted deposits are not included, and 186 में लिखा हुआ है that if there is a default in deposits, then you are restricted. So that hereby sums up that exempted deposits will not come within the term deposits. जो अपने को casually लग रहा है deposits है, but they are exempted deposits, so they are not exempted deposits. these deposits or loans, these includes only the accounted or unaccounted? Because वो I आप am giving ज्यादा very बता practical पाएंगे. example I am giving. Suppose a search takes place, not suppose search regularly takes place, and yes, हाँ, हाँ. is a practical, yes, and in the search, Shell company से no, no, search and seizure in any regular company, good company, and so many
documents related to loans or deposits are found. मैंने जो रुक्का बुक्का होते हैं ना, ये कच्चे के loans, not shown in the books of account cash loans. तो एज अगर इनकम टैक्स इज कंसर्न, उसका जो भी पेनाल्टी लगना है वो हाँ, तो सब फिर लगना ही कंपनी लॉ है. का वायलेशन तो बट है ही. हाँ, बट इफ इट रेफर टू द कंपनी लॉ, then whether it will be a violation or not. हाँ, ऑफ कोर्स वायलेशन तो है ही. Now in your Baro, you're supposed to report whether there are any Benami transactions, whether there are Yes, any yes. accounting entries which have not been disclosed. Yeah. now. So those two फिर कैरो में तो आपको पता ही क्या है कि उसने कच्चे का लोन ले रखा है, यू डू नॉट नो, बट सर्च होने से तो मालूम पड़ जाता है ना. हाँ, उसके बाद कैरो में तो आपको पता ही नहीं है. तो आपको उसके बाद में बताना होगा. नेक्स्ट ईयर में आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट ईयर बताना पड़ेगा. मैं सही कुछ नो नो क्या हुआ कि जिस the way the information are being passed from one department to another department, अब बहुत frequent हो गया है. Yes. They will come in within a year or two. Even आप देखिए आरोप का पास नहीं हो रहा है. they अभी are भी taking they have very meetings. lightly. Honestly, they have meetings which are there between the ROC, the CST, the income tax. इनका special meetings होता है इन सबको लेकर के. होता है रेगुलर होता है. वही कह रहा हूँ ना. RBI में all ये people information come. pass होने नहीं. इसीलिए from last 3 years they've started this whole Benami transactions because everybody was taking that free ना, कि जहाँ तो आपने सर्च हुआ कुछ हुआ आपने बोल दिया हाँ ये मेरा पैसा है, वहाँ तो कंपनीज एक्ट में क्या होगा, आप कहाँ से दिखा रहे हो, उसमें नहीं दिखा सकते. That is why all this has started. बताना पड़ेगा and it should come as part of the entry thing. उसको लाना ही पड़ेगा, कारों में रिपोर्ट करना पड़ेगा. Sir, another question. Yeah. This promoters loan, that is when I'm taking loan from bank and the promoters are giving their subscription, the promoters quota. Whether the promoters can give out of loans also. The source is not their no, own, no, they not are out borrowed. of loans. Then the very purpose of the exemption will be defeated. Out of their personal accruals. Is it prohibited under the? हाँ, because यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि directors और promoters only. Promoters in case of deposits, no, normal deposits. The loan is provided by the promoters themselves or by their relatives. Yes. Or out of their own funds. लिखा नहीं है, but that is the intention. Because the law will never let it happen. The So, normally what is happening, the promoters take the they don't have that. They, हाँ, वो तो directors वाले केस में भी होता होगा. नहीं, directors with specific prohibition है. But हाँ, there is लिखा हुआ no है. यहाँ prohibition है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. There is Right. no prohibition like this. There they have prohibited. They should have prohibited here also then. Maybe very soon. No, Amendments. that is it. As on date, it is not prohibited, I think. लिखा नहीं, but that cannot be also the intention. One can say to the promoters कि आप बाहर से ले आइए, arrange कर लीजिए, but यहाँ पे ऐसा कुछ certification या disclosure specifically लिखा हुआ नहीं. But usually बैंक वाले शायद जब आपको लोन देंगे promoters को, मतलब कंपनी को देंगे, तो शायद या कंपनी promoter से कुछ papers और undertaking आपस में. Okay. Oh. Right. फंडिंग का सोर्स ट्रेल हो ही जाएगा. राइट. Directors के लिए is there that you have to give out of your own funds. स्पेसिफिकली नहीं है. Also specified when you are taking any money from the bank and the bank is specifying that you need this money from the promoters and all, then maybe The intention is not that not कि आप there for लेके. promoters, but for the directors it is there. Yes, but Directors what? Directors Yeah. or any loans if the bank is specifying that you have to, Yeah, it's under the so exemption. it is under the exemption. Relatives की definition में जो covered है, section 2 उसमें शुरू में जो नाम दिया हुआ है, छोटा लिस्ट है compared to income tax.
ऐसा न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपके बाकी पैरामीटर्स किस हद तक कसौटी पर खरे उतरते हैं उस पर डिपेंड करेगा। हम्म। नहीं, आप बात करो, बहुत समय कंपनी का। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ हाँ। प्राइवेट कंपनी को तो वो सब नियम कानून देखने का दरकार नहीं है। दैट इज 6 मंथ्स, 36 मंथ्स, कभी कभी 3 से 6 जो आप बड़े होंगे। हाँ वही 6 and 36 होता है, समटाइम इट कैन बी। प्राइवेट कंपनी किस पे, DPT 3 में? हाँ मतलब अगर आप डिपॉजिट्स ले रहे हो वो एनुअल कंप्लायंस में तो जाएगा ही ना। आपने अगर इस साल में कोई ट्रांजैक्शन किया है वो भी डिपॉजिट्स वाला, आप प्राइवेट कंपनी के एंगल से पूछ रहे हैं ना, तो एनुअल कंप्लायंस में तो जाएगा ही एक बार। एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स है तब शायद नहीं होगा, अगर कुछ आपका आउटस्टैंडिंग बचा ही नहीं है ना, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस भी नहीं था। जो भी बात हो रहा था ना फॉर्म नया स्ट्रक्चर का हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? May I request now our chairman Nilmaji to concluding remarks. I think we've had a really exhaustive session, and he's explained all the provisions so beautifully. Each and every one of us have understood it, and I think we'll carry it back in our minds, and we can accordingly tell our clients what to be done and what not to be done. Though they will all come out with new things which they are not supposed to do. So thank you so much, Amit, for such a wonderful session. And I'll pass on the. Now I request our newly elected president, Advocate Paras Kocharji, to come and facilitate our chairman, C.A. Nilima Joshi, with a memento. Give a round of applause. Now I request our immediate past president, Ashok Maheshwari ji, to felicitate Nilima ji with our special gift. Now I request
our first president of the association, C.R.K. Vyas ji, to come and facilitate today's speaker, Amit Bachawat ji. Now I request our secretary Rakesh Dhaniwal ji to felicitate Amit Bachawat ji with our special gift, a Bhagavad Gita. Thank you, Amit Bachawat ji, for beautiful and interactive deliberation on the subject. And thank you, C.A. Nilima ji, for conducting very good deliberation. And thanks to all the participants for present here. Thank you all. We go to a lot of sessions, lot of seminars and webinars, but certainly this is one of such seminar session which we will not forget very soon. Good learning, very good, very beautifully explained the provisions, and a group photo. Yeah. फोटो ले सकते फोटो नहीं डाल सकते प्रॉब्लम नहीं है आपको डाइस